हाँ जी, our next topic is the Avogadro's hypothesis। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਡਾਲਟਨ ਅਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਲਟਨ ਅਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਅਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਸਿਰਫ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਮਾਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਾਅ ਸੀਗੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਇਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਲਟਨ ਅਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੇ-ਲੁਜ਼ੈਕ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੇ-ਲੁਜ਼ੈਕਸ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਡਾਲਟਨ ਅਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੇ-ਲੁਜ਼ੈਕਸ ਲਾਅ ਆਫ ਗੈਸੀਅਸ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ। ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਡਾਲਟਨ ਅਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੇ-ਲੁਜ਼ੈਕਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀ, ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਦਾ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਡਾਲਟਨ ਅਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਗੇ-ਲੁਜ਼ੈਕ ਲਾਅ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਲਾਅ। ਜੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਲਾਅ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ? ਇਕੁਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ all gases contain equal number of atoms under the similar condition of temperature and pressure। ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕੁਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਆਲ ਗੈਸਿਸ ਕੰਟੇਨ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ 1 ਵੋਲਿਊਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ, 2 ਵੋਲਿਊਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਦਾ ਲਾਅ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ। H2 plus Cl2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 2HCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? 1 ਵੋਲਿਊਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, 1 ਵੋਲਿਊਮ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, 2 ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? HCl। ठीक है जी, राइट। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम क्लोरीन है, 2 वॉल्यूम की बन रहा है हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है,
अगर मैं n एटम्स लऊँगी तो ये भी n एटम्स लऊँगी तो ये भी की बनणगे n एटम्स। पर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, 1 वॉल्यूम है तो यदा भी 1 एटम है, यदा भी 1 एटम है, यदा कितने बने 2 एटम्स। ठीक है, ये की बने 2 एटम्स। ठीक है, ठीक है। अगर मैं हाफ एटम लैनी हाँ, यदा हाफ एटम लैनी हाँ, यदा की बनेगा 1 कंपाउंड, कंपाउंड बन रहा है, इतने भी आएगा 1 कंपाउंड एटम। ठीक है, कंपाउंड है ना, कंपाउंड बने HCl। ठीक है, 1 कंपाउंड एटम। ये बर्जीलियस ने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अपनी दी एग्जाम्पल दी। ठीक है, बर्जीलियस कहता इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अगर असं 1 वॉल्यूम गैस लेने तो 1 एटम होएगा, 1 वॉल्यूम क्लोरीन लेने तो 1 एटम होएगा, 2 वॉल्यूम HCl बनता है तो 2 एटम्स होंगे। ठीक है, अगर असं 1 हाफ एटम लेने इधर हाफ लेने तो 1, मतलब 1 1 लवांगे 2 बनेगा, हाफ हाफ लवांगे तो 1 बनेगा। ये बर्जीलियस ने अपनी हाइपोथेसिस दे दी। ठीक है, सो इत्थे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जे भी बर्जीलियस ने दी, डाल्टन ने पंगा पा लिया। डाल्टन सेड एटम इज इंडिविजिबल। डाल्टन तो कहता कि एटम इंडिविजिबल है, क्योंकि डाल्टन ने पंगा क्यों पाया, क्योंकि डाल्टन यूज करके तो उन्हें बर्जीलियस हाइपोथेसिस बनाई सी। देखो डाल्टन की थ्योरी को कंपेयर किया गे-लुज़ैक के नाल, तो डाल्टन की अगर डाल्टन की थ्योरी को कंपेयर कर रहा बट डाल्टन ही फॉलो नहीं कर रहा, प्रॉब्लम तो क्रिएट होएगी ना। ये कहता 1 एटम तो हाफ एटम लाता, बट डाल्टन कहता कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली एटम इज इंडिविजिबल, एटम तो डिवाइड ही नहीं हो सकता। मिस्टर बर्जीलियस आपने एटम को डिवाइड कैसे कर दिया। डाल्टन कहता मिस्टर बर्जीलियस अगर आप मुझे ही यूज़ करके, मेरी थ्योरी को यूज़ करके अपनी लॉ दे रहे हो, हाइपोथेसिस दे रहे हो अपनी, तो ठीक है आपने मेरी हाइपोथेसिस, अपनी हाइपोथेसिस देने के लिए मेरे लॉ को यूज़ करा, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट अगर आप मेरी लॉ को यूज़ करके हाइपोथेसिस दे तो रहे हो बट मुझे ही गलत प्रूव करी जा रहे हो, तो डाल्टन को प्रॉब्लम होगी ना। डाल्टन कहता एटम इज इंडिविजिबल, बट बर्जीलियस ने तो एटम को डिवाइड कर दिया, 1 एटम से हाफ एटम बना दिया। पर डाल्टन सेड एटम तो कभी डिवाइड ही नहीं होता, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कभी डिवाइड नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता। वो कहता मैं तो बोल रहा हूँ एटम कभी डिवाइड, तूने एटम को डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो गया, डाल्टन एंड बर्जीलियस के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया। इसी मुद्दे को लेके डाल्टन और बर्जीलियस के बीच में क्या हो गई, फाइट हो गई। डाल्टन कहता कि मैंने बोला एटम इंडिविजिबल है, तू मेरी थ्योरी को यूज करके एटम को डिवाइड करी जा रहा है, तेरे को किसने बोला है, मैं तो बोल रहा हूँ कि एटम इंडिविजिबल है। डाल्टन और बर्जीलियस के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई होगी दोनों के बीच में। इन दोनों की लड़ाई को सुलझाने के लिए, दोनों की सुलह करवाने के लिए कौन आया, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कहता लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, आप डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लो। इन दोनों को सुलझाने के लिए कौन आया, एवोगैड्रो आया। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, ठीक है, क्या होता, कहता एवोगैड्रो कहता क्या कर लो, इक्वल। एवोगैड्रो ने इन दोनों को सुलझाने के लिए अपनी एक नई डेफिनेशन दी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन। डाल्टन और बर्जीलियस की जो फाइट होगी, इन दोनों की फाइट को सुलझाने के लिए कौन आया, एवोगैड्रो आया। एवोगैड्रो क्या कहता, कहता लड़ना नहीं है, छोटा सा एक चेंज है वो चेंज कर देता हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहता, कुछ नहीं है, कहता एटम की जगह पे वर्ड क्या यूज कर लो, मॉलिक्यूल यूज कर लो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द सिमिलर conditions of
temperature and pressure। ठीक है, अब एवोगैड्रो ने ये बता दिया, एवोगैड्रो कहता कि आप अगर एटम की जगह पे मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ कर लो तो आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। एटम कहता बर्जीलियस, अगर आप एटम की जगह पे मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ कर लेते तो आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी थी। तो अब एवोगैड्रो ने इन दोनों को डिस्प्यूट को सुलझाया ना, तो एवोगैड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस दी है ना। अब डाल्टन जो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस, वो तो हाइपोथेसिस ही रह गई, वो तो लॉ बनी नहीं, क्योंकि बर्जीलियस ने डेफिनेशन दी बट वो डेफिनेशन जो है प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुई। तो बर्जीलियस की क्या रह गई, वो हाइपोथेसिस रह गई, बर्जीलियस का लॉ नहीं बना। बट एवोगैड्रो ने इन दोनों के डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए अपना एक नया कंसेप्ट दिया। अब अगर वो प्रैक्टिकली चल गया तो वो एवोगैड्रो का लॉ बन जाएगा, नहीं तो वो भी क्या रह जाएगा, हाइपोथेसिस ही रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि एवोगैड्रो ने जो बताया, इन दोनों की लड़ाई को क्लियर करते करते जो एवोगैड्रो ने फ़ायदा उठाया इनकी लड़ाई का, क्या उस लड़ाई से, है ना, क्या जो एवोगैड्रो उनको कोई फ़ायदा होता है? ठीक है, क्या एवोगैड्रो का नाम चलता है उन दोनों की लड़ाई से? अब वो देखते हैं। अब एवोगैड्रो ने बता तो दिया कि अगर एटम की जगह मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ कर लेंगे तो प्रॉब्लम सारी क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं कि एवोगैड्रो ने जो डेफिनेशन को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता है, अगर दिखा दिया तो वो क्या बन जाएगा, एवोगैड्रो का लॉ बन जाएगा। फिर वो अपनी एप्लीकेशंस भी देगा एवोगैड्रो, क्योंकि अगर लॉ बन गया तो फिर उसको अपने प्रूफ देने पड़ेंगे ना कि मेरा लॉ ठीक है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए अब कौन आया, एवोगैड्रो का जो लॉ है, एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस है, उसको हम देखते हैं कि वो लॉ बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो अब एवोगैड्रो ने क्या करा, ठीक है, एवोगैड्रो का लॉ इसको देखते हैं क्या वो बनता है। चलो, एवोगैड्रो ने सेम एग्जांपल ली, H2Cl2, सेम एग्जांपल लेते हैं, 2HCl। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम की बात करिए ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, 1 वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स। HCl के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, 2 मॉलिक्यूल्स। हाफ मॉलिक्यूल मीन्स 1 एटम। एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है ना, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बनता है, 2 एटम से। अगर मॉलिक्यूल एटम में डिवाइड हो सकता है ना, मॉलिक्यूल के मैं हाफ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल का हाफ करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल का हाफ क्या होता है, मॉलिक्यूल का हाफ, मॉलिक्यूल को हाफ करते हैं तो क्या बनता है, एटम। मॉलिक्यूल को अगर हाफ 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, एटम बन जाता है। तो मॉलिक्यूल को मैं हाफ लिख सकती हूँ ना, हाफ मॉलिक्यूल तो 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर मैं हाफ H2 लूँगी, H2 हाफ लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 HCl ही बनेगा ना, वहाँ हाफ H2 लूँगी, हाफ Cl2 लूँगी तो। हाँ जी बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ। बिकॉज ऑफ एवोगैड्रो लॉ बन ही गया, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूव हो गया, तब उसकी क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी। डिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, एक मॉलिक्यूल कितने 2 एटम से बनता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कितने 2 एटम से बनता है, बट कोई मॉलिक्यूल 3 एटम से भी बनता है। मैक्सिमम मिनिमम एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। मिनिमम एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। बट समटाइम कुछ मॉलिक्यूल 3 एटम से भी बनते हैं, बट प्रेजेंटली उस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 में कितने एटम हैं, 2 एटम, तो O2 की एटॉमिसिटी क्या है, 2। H2 कितने एटम हैं, 2 एटम्स, H2 की एटॉमिसिटी क्या है, 2। O3 ओजोन कितने एटम्स हैं, 3, तो O3 की एटॉमिसिटी 3। मतलब एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना, दैट इज द एटॉमिसिटी। सो रिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। सो कैसे निकालनी है,
ठीक है, अभी एवोगैड्रो लॉ करे तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंगली निकालनी है ना, कोई एप्लीकेशन एवोगैड्रो की है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। अब एवोगैड्रो लॉ बन गया तो एवोगैड्रो लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, दैट आर एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, वो चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अगर एवोगैड्रो लॉ के एप्लीकेशंस करेक्ट का इसका मतलब क्या है कि एवोगैड्रो लॉ कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हम एटॉमिसिटी। एवोगैड्रो लॉ एटॉमिसिटी फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। फर्स्ट एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ एटॉमिसिटी, इसका मतलब क्या है, जो एवोगैड्रो लॉ है वो एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं, कैसे एटॉमिसिटी निकालने में हेल्प करेगा एवोगैड्रो लॉ। सपोज हमने निकालनी क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है हमने, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बोला फाइंड आउट द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन मैंने आपको दे दी है, H2, ठीक है, O2 टू फॉर्म H2, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आ गया। मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी है, मैंने बोला बच्चों इस इक्वेशन में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी फाइंड आउट करो। तो आपने क्लियर है, एटॉमिसिटी एवोगैड्रो लॉ से ही फाइंड आउट होती है। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो ने यही बोला ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम मतलब 2 मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो लॉ लगा रही हूँ ना, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाफ कर दूं, 1 मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल मतलब 1 एटम, ठीक है। इसके इधर क्या जाएगा, 1 मॉलिक्यूल। आया समझ। सो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, 1 एटम। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 1। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू एटम्स। सो एटॉमिसिटी ऑफ O2 क्या आ गई, 2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन। इसकी कोई प्रॉब्लम हुई एटॉमिसिटी की, एंड लेट मी नो, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ relationship between vapor density and molar मास ऑफ गैस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एज सच भी आ जाता है और यूज भी होता है आगे जाकर, ठीक है जी। वेपर डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन निकालना। सबसे पहले वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती क्या है, जो वेपर्स बनते हैं उनकी डेंसिटी, जो वाटर के वेपर्स बनते हैं, किसी भी गैस के वेपर्स बनते हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, दैट इज अ वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी किसके इक्वल है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का जितना वॉल्यूम ले रही है उसका मास अपॉन मास ऑफ
सर्टेन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ, जितना ऊपर लिया उतना वॉल्यूम नीचे लेना है, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? जिस गैस की आपने वेपर डेंसिटी निकालनी है, जिस गैस की भी आपने वेपर डेंसिटी निकालनी है, उस गैस का जितना वॉल्यूम लिया है उसका मास अपॉन उस गैस का जितना वॉल्यूम लिया है उस वॉल्यूम का मास। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का आपने 1 वॉल्यूम लिया है, O2 का आपने 1 वॉल्यूम लिया है, तो O2 के 1 वॉल्यूम का मास कितना है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16 होता है ना, O2 का 1 वॉल्यूम का मास कितना हुआ? 32 ग्राम। क्योंकि O2 एक वॉल्यूम ले रही हूँ ना, एक वॉल्यूम में O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? O2 मॉलिक्यूल है, मास क्या हुआ? 16 इंटू 2 32। तो जितना भी किसी भी गैस का आपने वॉल्यूम लिया है, 1 वॉल्यूम लिया है, 2 वॉल्यूम लिया, अगर ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम लेते हो आप, 2 O2 लेते हो, 2 वॉल्यूम लेते हो, तो मास कितना हो गया? 64। 32 इंटू 2, जितना वॉल्यूम ऊपर लिया है उसका मास अपॉन सेम उतना वॉल्यूम किसका लेना आपने? हाइड्रोजन का मास। उतना वॉल्यूम हाइड्रोजन का लेके उसका मास। सपोज आपने हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लिया, ऊपर ऑक्सीजन का आपने वेपर डेंसिटी आप ऑक्सीजन की निकाल रहे हो, सपोज किसकी वेपर डेंसिटी निकाल रहे हो? ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी निकाल रहे हो। तो ऊपर आपने क्या लेना है? ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम का मास। नीचे आपने क्या लेना है? ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 1 वॉल्यूम का मास। ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम का मास कितना हुआ? 32 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 वॉल्यूम का मास कितना हुआ? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन है ना, H2, 2 इंटू 1, नीचे क्या आ गया? 2 पर 32 ग्राम, नीचे 2 ग्राम। वेपर डेंसिटी कितनी आ गई? 16। वेपर डेंसिटी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये पर हमने निकालना क्या? रिलेशन निकालना है मॉलिक्यूलर मास के बीच में और वेपर डेंसिटी के बीच में। ठीक है जी, ये वेपर डेंसिटी हो गई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम है। पर हमारा जो एवोगैड्रो लॉ है वो क्या कहता है? कि जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम लोगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज। अगर आपने यहाँ पे 1 वॉल्यूम लिया किसी भी गैस का, उसका मतलब क्या है? आप 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। यही बोला ना लॉ, तो यही बोल रहा ना एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन ले रहे हो, अगर आप मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास ले रहे हो। जितना वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो मॉलिक्यूल के इक्वल है। ये डेफिनेशन में बोला गया एवोगैड्रो की। जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? मॉलिक्यूल के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है? मास ऑफ, जैसे हमने 1 वॉल्यूम लिया सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ n मॉलिक्यूल। सर्टेन वॉल्यूम बोला है ना, सर्टेन मतलब कोई भी वॉल्यूम, n मॉलिक्यूल मतलब जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स। अगर 1 वॉल्यूम की बात करता, जहाँ मैं 1 मॉलिक्यूल लिख देती, मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ, और ऊपर n मॉलिक्यूल, नीचे भी क्या आएंगे? n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इस टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो घबराना नहीं है, मेरे से पूछ लेनी है बेटा। ठीक है, वेपर डेंसिटी को VD लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब मैंने मास लिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मैं तो ऑक्सीजन अपनी तरफ से यूज़ करी जा रही हूँ, अब कोई भी गैस आ सकती है ना। नीचे आपने हाइड्रोजन ही लेनी है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस किसका मतलब होगा? मोलर मास। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, अपॉन नीचे क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ, लाइन सेंस कन्वर्ट करिए, मोलर मास ऑफ गैस। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2। तो रिलेशन क्या आ गया? इधर लिख रही हूँ साइड पे, देखो बेटा, इसी पेज पे लिख रही हूँ। रिलेशन क्या आ गया? 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास।
उन्होंने पूछा क्या था, रिलेशन पूछा था वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में, मैंने निकाल दिया। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, रिलेशन है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में। वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होती है, किसी गैस के किसी भी वॉल्यूम का मास अपॉन हाइड्रोजन का सेम वॉल्यूम का मास। अब एवोगाड्रो लॉ ने क्या बोला है, जितना वॉल्यूम लोगे उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तूने सर्टन वॉल्यूम लिया, सर्टन वॉल्यूम किसके इक्वल हुआ अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, n मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब मैंने 1 मॉलिक्यूल की बात कर ली, ठीक है, क्योंकि मिनिमम हम कम से कम जो लेते हैं 1 ही लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग लिया। फिर कुछ नहीं समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। जो थर्ड है, जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज determination of relationship between molar mass and volume of gas, between mass and volume of gas, not molar mass, mass and वॉल्यूम ऑफ गैस, रिलेशन बताना है। अब वेपर डेंसिटी किसके इक्वल आई थी, जो हमारे पास आई थी, मोलर मास किसके, अब रिलेशन हमने निकाला ना, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। पीछे निकाला ना अभी हमने, मोलर मास इज इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसके इक्वल थी, अभी करा ना, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी करी ना पीछे, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मोलर मास वॉल्यूम 1 लीटर ले लूँ, फिक्स वॉल्यूम 1 लीटर होता है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मोलर मास 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस अपॉन हाइड्रोजन के 1 लीटर का जो मास है वो फिक्स है। हाइड्रोजन के 1 लीटर का मास होता है 0.089 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 लीटर का मास क्या होता है, 0.089 ग्राम। बस एक मतलब गिवन वॉल्यूम दा मास कटना है, मतलब ठीक है, किसी भी जो वॉल्यूम है, मैं तुहानू कहता ऑक्सीजन 10 लीटर का, ऑक्सीजन का 10 लीटर किसके इक्वल है, उसका अपने मोलर मास, कितने मोलर मास के इक्वल होगा वो निकालना है। सो क्या आ गया, मोलर मास इन दोनों को डिवाइड करके आया 22.4 इंटू इन दोनों को डिवाइड करके 22.4 मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। मोलर मास किसके इक्वल है, 22.4 लीटर, 22.4 दोनों को डिवाइड करके आया मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। ठीक है, सो मोलर मास किसके इक्वल होता है, 22 मास ऑफ डिवाइड हो गया ना इसके साथ, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32 ग्राम है।
तो ऑक्सीजन का जो 32 ग्राम है बाय वॉल्यूम वो 22.4 लीटर है। मास 32 ग्राम है, मास में देखा जाए 32 ग्राम है, बाय वॉल्यूम देखा जाए तो 32 ग्राम कितने वॉल्यूम के? 22.4 लीटर। हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का जो 2 ग्राम है मास, 2 ग्राम मास जो है वो बाय वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल है बाय वॉल्यूम। मतलब किसी भी कोई भी गैस है, एनी गैस, उसका जितना मोलर मास है वो बाय वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। चाहे वो हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, चाहे वो नाइट्रोजन का 28 ग्राम है, चाहे वो ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, चाहे वो क्लोरीन का 35.5 ग्राम, 71 ग्राम है, जितना मर्जी ले लो, बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? 22.4 लीटर के इक्वल। ठीक है बेटा। सो ये था एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को अच्छे से करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछना बेटा। ठीक है, पूछ लेना प्रॉब्लम। ठीक है, टॉपिक थोड़ी आ सकती है प्रॉब्लम, बेटे मैंने बहुत अच्छे डिटेल से समझा दिया आपको, फिर भी लगे कोई प्रॉब्लम है लेट मी नो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।